Most importantly, we have the vaccine, which is absolutely important to save lives and defeat the pandemic. The emergence of a vaccine in a year of the pandemic striking shows the power of human determination and tenacity. India is proud of our scientists who have worked on the COVID-19 vaccines. Through this forum, I would like to once again salute our first responders, frontline healthcare workers, doctors, nurses, volunteers, who selflessly risk their lives every day to serve others in need. To those who have suffered and lost their near and dear ones, I would like to extend condolences. I grieve with them. Friends, by studying the life of Lord Buddha, there is mention of the four sights. These four sights brought Lord Buddha face to face with human suffering. At the same time, it ignited within him the desire to devote his life to removing human sufferings. Lord Buddha taught us, Bhavatu Sabba Mangalam. Blessings, compassion, and welfare of all. In the last year, we have seen several individuals and organizations rise to the occasion and do everything possible to reduce suffering. I have also learnt of the generous contribution of equipment and materials made by the Buddhist organizations, followers of Buddha Dharma from world over. The scale, both in terms of population and geographical space, of the task is huge. Humanity has been humbled by the outpouring of generosity and support from fellow humans. These actions are in line with the teachings of Lord Buddha. It manifests the supreme mantra of Appadipo Bhava. Friends, COVID-19 is certainly a major challenge we face. While we do everything possible to fight it, we must not lose sight of the other challenges humanity faces. One of the biggest challenges is that of climate change. Reckless lifestyle of the present threaten the coming generations. Weather patterns are changing. Glaciers are melting. Rivers and forests are in danger. We cannot let our planet remain wounded. Lord Buddha put emphasis on a way of life where respect for Mother Nature is paramount. I am proud to share that India is among the few large economies to be on track to completing their Paris targets. For us, sustainable living is not only about right words, it is about the right actions. Friends, the life of Gautam Buddha was about peace, harmony, and coexistence. Today, there are still forces remaining whose existence depends on spreading hate, terror, and mindless violence.
such forces do not believe in liberal democratic principles. The need of the hour is for all those who believe in humanity to come together and defeat terror and radicalization. For that, the path shown by Lord Buddha is absolutely relevant. Lord Buddha's teachings and the importance given to social justice can become a global unifying force. He rightly said, Natti Santi Paran Sukham. There is no higher bliss than peace. Friends, Lord Buddha was the reservoir of brilliance of the entire universe. From him, we all could draw light from time to time and take the path of compassion. Universal responsibility and welfare. Mahatma Gandhi rightly said about Gautam Buddha, and I quote, Buddha taught us to defy appearances and trust in the final triumph of truth and love, unquote. Today, on Buddha Purnima, let us renew our commitment to the ideals of Lord Buddha. I join you all in praying to the triple gem to provide relief from the testing times of global COVID-19 pandemic. Thank you. Thank you very much. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है और अब दुनिया को इस नजरिए से देखा जाएगा कोरोना महामारी से पहले और कोरोना महामारी के बाद, यानी इसने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसके आधार पर दुनिया को देखने का एक नजरिया भी बदलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने साथ ही ये भी कहा कि वैक्सीन अब हमारे पास है, इसलिए इस लड़ाई में और मजबूत होकर हम उतरेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आइए अब आपको यास तूफान से जुड़ा हुआ ग्राउंड से अपडेट देते हैं। बालासोर धांधा से तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर दूर है। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव है अब 10 फीट ऊंची है। यहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चली है, समुद्र भी काफी रफ हो चला है, बिल्कुल अशांत समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें। आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे जगह पे हवाएं, अगर लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने स्ट्रॉन्ग है। यास तूफान ने ओडिशा में अपनी ताकत का पहला ट्रेलर दिखा दिया है। थोड़ी देर पहले तूफान ओडिशा के तट तक पहुंचने के बाद बालासोर की तरफ बढ़ रहा है और किसी भी वक्त बालासोर में तूफान के टकराने की गरज सुनाई देने लगेगी। माना जा रहा है कि तूफान की रफ्तार अधिकतम 155 किलोमीटर तक हो सकती है। बालासोर समेत ओडिशा के समुद्री तटों पर तेज हवाओं के साथ उफान का शोर भी सुनाई दे रहा है। हालात को देखते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ओडिशा के बाद सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ रहा है। यहां भी कोलकाता एयरपोर्ट बंद है और समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। बालासोर से 50 किलोमीटर दूर है अभी तूफान और धामरा, जहां की लैंडफॉल होना है वहां से 30 किलोमीटर दूर।
कहा जा रहा है कि अगले 2 घंटों में ये लैंडफॉल वहां हो सकता है। रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है, ये अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। आपको अलग अलग इलाकों की हम यहां पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर तूफान का असर दिखना शुरू हो गया है। तेज हवाओं और बारिश के रूप में समुद्री इलाकों में हालात ज्यादा इस वक्त खराब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एहतियातन इलाकों को खाली भी कराया गया है, कई जगह पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। खासतौर पर मछुआरों को लेकर ये अलर्ट मौसम विभाग लगातार जारी करता है कि जो किनारों पर हैं वो कम से कम ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ बढ़ जाएं। ओडिशा में यास की टकराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर में तूफान पूरी ताकत के साथ बालासोर के पास चोट करेगा। इसी जगह पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी कमलजीत संधू, जिन्होंने थोड़ी देर पहले समंदर के उफान के बीच तूफान का हाल बताया। तेज हवाएं चल रही हैं, 140 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये हवाएं हैं और टाइडल वेव है अब 10 फीट ऊंची है, तो हवा का जो रुख है वो काफी तेज हो चुका है, रफ्तार हो चुका है। आपको बता दें यहाँ पे अगर हम आपको दूसरी तरफ दिखाएं, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरह से टिप रूप है ये उड़ रही है। कुछ लोग बाहर आए हैं सिर्फ देखने के लिए, जो आसपास के लोग हैं। और उससे पहले आपको बता दें पानी भर चुका है नीचे की तरफ भी। ये पानी की जो लपटें हैं, जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची आ रही हैं। साइक्लोन यास ने अपनी दस्तक दे दी। आप देखिए पानी ऊपर तक आ रहा है, 10 फीट ऊपर तक आ रहा है पानी। तो खतरे की घंटी बज चुकी है। लोगों को एहतियात के तौर पे पीछे जाने के लिए बोला है। अब से भी अगर आपको कैमरा दिखाएं, कुछ लोग पीछे की तरफ आप देख सकते हैं भाग रहे हैं तरफ। यहाँ पर वो लोग हैं जो यहाँ पे साइक्लोन को देखने आए थे। पुलिस स्टेशन भी हमें नजर आ रहा है वहां पर। और खास तौर पे अगर हम बात करें, तेज हवाएं चलने लगी है और अब संकेत है कि लैंडफॉल किसी वक्त भी हो सकता है। और खास तौर पे जो अस्पताल है जहां पे मरीज भर्ती है उन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बिजली नहीं है। लेकिन जो लोग वेंटिलेटर पे है, आईसीयू पे है, जो लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, उन्हें लगातार बिजली मिलनी चाहिए, बैकअप मिलना चाहिए, उसका प्रबंध किया है। और उड़ीसा ने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन लैंडफॉल के बाद असली पता चलेगा। तकरीबन 3.5 लाख लोगों को हटाया गया, लेकिन हमें बताया गया कई लोग ऐसे हैं जो अपना मकान छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे और इसी वजह से वहां पे समस्या आई है। एनडीआरएफ से हमारी सुबह भी बात हुई, उन्होंने कहा था जो लोग नहीं गए उन्हें हटाया जाएगा। लेकिन जो साइक्लोन सेल्फी है, एक क्रेज है कि हम खुद वीडियो रिकॉर्डिंग करें, खुद यहाँ पर बनाएं। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जहाँ हम खड़े हैं, वो बिल्कुल समंदर के पास है। लेकिन थोड़ा पीछे की तरफ अगर रुक करें तो देखिए मोबाइल के साथ कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं जो तस्वीरें बनाना चाहते हैं। और अब से कुछ देर पहले जो अफरा तफड़ी हुई है, आप देख सकते हैं जो सामने की दुकानें हैं अब वो कुछ टूट फूट गई हैं। वहां से हमारे सामने से सामान निकाला गया, उन्होंने पीछे ले जाया। तो खास तौर पे अगर हम बात करें, ये वो नवयुवक है जिनको हम ना कि लापरवाही भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेल्फी खिंचाने के चक्कर में सामने आए हैं। तो एहतियात के तौर पे इन्हें बोला गया, बार बार घोषणा की गई कि आप पीछे जाएं, लेकिन जिस तरह से वो आगे आ रहे हैं ये अपने आप में खतरे का संकेत है। ये उफान है, सीवियर साइक्लोन है, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। और बोला गया है कि मोबाइल फोन टावर हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हो या फिर जो पेड़ है वो तक उखड़ सकते हैं, इतनी तीव्रता इस तूफान में। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कैमरा भी हिल रहा है। तो तूफान अपने चरम पे आ रहा है और पिछले 1 घंटे से हम देख रहे हैं कि इस तरह से तूफानी हवाएं चल रही है और अगले 1 घंटे में इसका जो पूरा प्रकोप है वो बालासोर में भी नजर आएगा।
तो इन मुश्किल हालातों में आप कंवलजीत संधू की ये रिपोर्ट देख रहे थे, जो वो सीधे आपको समुद्री तट से दिखा रही थी। वहां कितने जबरदस्त हालात हैं इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, और इसीलिए आने वाले 4 से 5 घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। आपको ये बताते हैं कि तूफान आखिर टकराएगा कहां, लैंडफॉल का जो हिस्सा है वो कौन सा है। अगर आप यहां पर इस नक्शे पर भी ध्यान से देखें तो जो ये जगह है ये धामरा है, और यहां ओडिशा के बालासोर में ये जगह है, और यहां पर तूफान टकराएगा। हवाओं की रफ्तार 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। दोपहर 1 बजे से पहले यानी अगले 2 घंटे में यह समय होगा जब लैंडफॉल होगा। जगह धामरा बताई जा रही है ओडिशा की, और ओडिशा के अलावा जो दूसरा राज्य है वो पश्चिम बंगाल है, जहां पर सबसे ज्यादा असर तूफान का रहने वाला है और सबसे ज्यादा प्रभावित भी ये राज्य रहेगा। दोपहर 1 बजे का यह समय, जिसे लेकर मौसम विभाग ने इससे पहले ही जानकारी दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी कुछ घंटे बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, लिहाजा उसके हिसाब से प्रशासन की तैयारियां भी। लेकिन आपको भारत के नक्शे पर हम दिखा रहे हैं कि ये चक्रवाती तूफान जो बंगाल की खाड़ी से उभरा है, ये आगे किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा। तो नक्शे पर जो राज्य आप इस सफेद रंग से हाईलाइटेड यहां पर देख रहे हैं, यानी कि ओडिशा जहां सबसे ज्यादा असर है, जहां लैंडफॉल होना है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद दक्षिण में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहां पर भी इनका असर जाएगा। करीब करीब ऐसी ही हालत आपने इससे पहले जब ताउते तूफान आया था तो देश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में वो तस्वीर देखी थी। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट आपको दे रहे हैं वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं। कंवलजीत संधू की ये रिपोर्ट बालासोर से। ये कोस्टल इलाके के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, खासतौर पे जो भद्रक डिस्ट्रिक्ट है जो बिल्कुल बगल में सटा हुआ है, और इसके पास जो पश्चिम बंगाल है उसके जो कई डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें रेड अलर्ट घोषित किया गया है, और लो लाइन इलाके हैं वहां पे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 11 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी दर्जन भर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में जहां पे रेड अलर्ट है। यहां तक भुवनेश्वर तक में भारी बारिश की शंका की जा रही है, और उससे पहले तैयारी है। लेकिन अगर हम बात करें आसपास के इलाकों की, जो पेड़ है, टहनियां हैं, वो टूट रही हैं। हम आपको एक बार दिखाएं पीछे की तरफ से, तो वहां पे जो छोटे छोटे पेड़ हैं, टहनियां हैं, वो वहां पे टूट रही हैं, तो उसे भी हटाया जा रहा है। तो अपने आप में अगर हम पेड़ों का रुख करें, अगर आपको वहां पे दिखाएं पीछे किस तरह से जो पेड़ हैं वो हिल रहे हैं, तो अपने आप आपको जो तीव्रता है वो पता चलेगी कि किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, और हवा बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ अगर समुद्र की लहरें हैं, आप देख सकते हैं कितनी ऊंची हैं, और अगर दूर कैमरा पर्सन कृपाल हमारे साथ है, बने हुए हैं लगातार, और आपको दूर से हम दिखाएं वो जो बिल्डिंग आपको सामने नजर आएगी, जब आप देखेंगे कि कितनी ऊंची जा रही है, तो बिल्डिंग की हाइट से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितनी ऊंची इसकी लहरें जा रही है। हाई टाइड इसे बोला जाता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। इसमें एहतियात के तौर पे लोगों को अंदर होना चाहिए। इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, अनाउंसमेंट्स की गई हैं, उसके बावजूद लोग बाहर हैं। लेकिन जो असली फर्क है वो उन लोगों को पड़ेगा जो कि कच्चे घर में रहते हैं, जो टिन घरों में रहते हैं, क्योंकि उसके शेड हैं, वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। असली जो नुकसान है वो कोस्टल एरियाज में ही होगा, और उस पर ही ध्यान दिया जा रहा है, और वहीं पे इवैक्यूएशन सबसे पहले कराया गया। कंवलजीत लगातार ओडिशा से रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इससे अलग पश्चिम बंगाल में भी असर है। आपको हम दिखाते हैं कि तूफान का असर वहां किस तरह से तबाही के रूप में दिखाई देता है। तेज हवाओं की वजह से एक विशालकाय पेड़ वहां पर सड़क पर आ गिरा, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से उसे हटाने की प्रक्रिया शुरू की हुई। हमारे कोलकाता के रास्ते पे जिस तरह से पेड़ गिर चुका है, कल रात से जिस तरह से भारी बारिश और उसके साथ साथ हवा चल रही थी, उसके वजह से काफी जगहों पे इस तरह का पेड़ गिरा हुआ है, और उसको साफ करने की कोशिश इस वक्त कोलकाता कॉर्पोरेशन के जो आधिकारिक है, जो लोग हैं, जो पर्सनल है, वो कोशिश कर रहे हैं। रास्ते पे उतर के उसको साफ करने की कोशिश हो रही है, ताकि किसी भी तरह का व्हीकुलर मूवमेंट में कोई ब्लॉकेज ना हो, और सिर्फ उनको पेड़ों को काटा जा रहा है जो गिर गया है, और रास्ते से हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ इस तरह का जो मशीन है वो भी लाया गया है, आप देख सकते हैं, ताकि अगर ऊंचे पेड़ों पर जाके जो ब्रांच है वो हिल रही है, अगर उसको काटने की जरूरत पड़े तो उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इस तरह का ब्रांच लगाया गया है, और किस तरह से लोग ऊपर जा रहे हैं, ताकि अगर ऊपर किसी एक पेड़ के किसी एक जगह से काटना है जो ऊपर से हिल रहा है और ऊपर गिर सकता है हवा की वजह से, तो उसको भी काटने की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे चल रही है। तो
पिछली बार जब साइक्लोन अम्फन आया था तो कोलकाता के बहुत सारे रास्ते थे जो पेड़ गिरने के वजह से बिल्कुल आवाजाही ठप हो गई थी काफी दिनों के लिए, कई दिनों के लिए। उस तरह का सिचुएशन इस बार ना हो, इसके मद्देनजर रखते हुए इस बार अभी से जब साइक्लोन की लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गई है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में, वहां पे अभी से एहतियात बरती जा रही है। और जो कोलकाता कॉरपोरेशन के जो अफसर हैं वो सड़कों पर ये देख रहे हैं कि कहीं पे ब्लॉकेज ना हो और उसको किस तरह से जल्द साफ कर दिया जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। और इस वक्त हमारे साथ पश्चिम बंगाल के दीघा से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र। अनुपम, आप लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां अभी वहां पर हैं? बिल्कुल, देखिए दीघा में समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर किंतु पानी भर गया है। ये नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। दुकानों में पानी भर गया है। इंडियन आर्मी की पूरी टुकड़ी यहाँ पर उतार दी गई है। जो दुकानों में पानी भर गया है, जो दुकानदार हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी सभी की मदद कर रही है। यहाँ पर ये देखिए दुकानों में किस कदर पानी भरा है और ये समुद्र का पानी है। बरसात बहुत ज्यादा हुई है ऐसा नहीं है, समुद्र का पानी पूरी तरह से इतना लबालब चारों ओर दीघा में सड़कों पर आ गया है, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इससे पहले। और ये पहली बार हुआ है दीघा के इतिहास में कि इस तरह समुद्र का पानी लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर सड़कों पर, दुकानों पर, घरों में भर गया है। और इसी वजह से सिविल डिफेंस की टीम, इंडियन आर्मी की टीम जिसको तैनात करके रखा गया था, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो सामान बचा हुआ है, बहुत सा सामान खराब हो गया है, नष्ट हो गया है, और जो सामान बचा हुआ है उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं और दुकानदारों की मदद कर रहे हैं। और ये सिर्फ ये इलाका नहीं है, ऐसे बहुत सारे आसपास में इलाके हैं जहां ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। लोग, दुकानदार खासतौर पर यहाँ पर देखिए आप, चारों ओर भीड़ लगाकर रखे हुए हैं क्योंकि बहुत लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारी दुकानें बंद थी। अब उन दुकानों को खोलकर दुकानों के भीतर जो पानी भरा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब देखने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो माल सामान बचा हुआ है उसको किसी तरह, कितनी भी जल्दी हो सके, निकाल कर बचाया जा सके। तो उसी बचाने की कवायद को हम इंडियन आर्मी की मदद के तौर पर भी यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है चारों ओर, यहाँ पर घुटनों तक पानी है। तो सामने की अगर मैं दिखाऊं, कैमरामैन तापस बैरी को बोलूंगा कि थोड़ा सामने अगर आपको दिखाए, तो कमर तक पानी भी यहाँ भर गया है। और ये चारों ओर विस्तीर्ण इलाकों में ऐसी स्थिति आई है और ये स्थिति पहली बार दीघा में हुई है। समुद्र का पानी सुबह जिस तरीके से समुद्र से बाहर आ रहा था, जो तटबंध बना हुआ है, जो लहरें उठ रही थी, कम से कम 13, 14, 15 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी, उन लहरों ने पूरे इलाके को लेकिन यहाँ पर पानी से भर दिया है। फ्लडिंग की स्थिति हो गई है और ये तो प्रोसेस शुरू हुआ है लैंडफॉल का और ये प्रोसेस कई घंटे तक चलेगा। ऐसे में हवाएं लगातार तेज चल रही हैं और तेज चलेंगी, पानी लगातार बाहर आ रहा है और ये जो पानी है धीरे धीरे और सामने की ओर बढ़ रहा है, जहां घर हैं, होटल हैं, दुकानें हैं। तो ऐसे में नुकसान की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये डिपेंड कर रहा है कि कितने घंटों तक ये प्रोसेस चलेगा। मीनाक्षी जी, अनुपम, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। आप जिन हालातों में वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी तस्वीर वहाँ काफी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि अभी लैंडफॉल की प्रक्रिया चल रही है। अभी तूफान टकराया नहीं है उस इलाके से। अगले 2 घंटे का समय लैंडफॉल टकराने का होगा, उसके बाद आगे का दिन जो है बेहद संवेदनशील रहने वाला है तटीय इलाकों को देखते हुए। तूफान आने में कुछ ही समय बाकी रह गया है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों में सुबह से तूफान का असर दिखने लगा है। तेज बारिश, तेज हवाएं, समंदर में लहरें, तूफान की तस्वीर सुबह से लगातार आ रही है। बस चंद घंटे बाकी है जब यास तूफान की पूरी पिक्चर आ जाएगी, लेकिन इससे पहले तूफान का ट्रेलर देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के दीघा के समंदर में हलचल तेज है, लहरें दहाड़े मार रही हैं। तूफान के आने से पहले जब ये हाल है तो सोचिए चंद घंटों बाद क्या होगा। साइक्लोन यास बड़ी तेजी से इस वक्त समुद्र की ओर से धरती की ओर बढ़ रहा है। हम लोग इस वक्त उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पे हैं, दीघा पे, और यहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चली है।
समुद्र भी काफी रफ हो चुका है, बिल्कुल अशांत समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें और कुछ ही समय की बात है जब लैंडफॉल होने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में लगातार तेज हवाएं बह रही हैं। सुबह से ही जो अनुमान लगाया गया था कि साइक्लोन यास बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर से टकराएगा, वैसी ही कुछ संभावनाएं इस वक्त बन चली हैं और जो लैंडफॉल का एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताई जा रही है बालासोर और पारादीप के बीच में। दक्षिण 24 परगना के बकहाली का मंजर भी देख लीजिए। ये इलाका पश्चिम बंगाल का आखिरी छोर है। इसके बाद बंगाल की खाड़ी शुरू हो जाती है। समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने, जिसके आगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और उड़ीसा की तरफ मूव कर रहा है, वो आज दोपहर के आसपास बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप, बकहाली, काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बकहाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है। लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिवाइसिव है और ये इसका इम्पैक्ट जब होगा तब समझ में आएगा कि बकहाली और साउथ बंगाल में कितनी तबाही मचती है। तूफान उड़ीसा ताउते तूफान और इंसानी लापरवाही ने 86 परिवारों को तबाह कर दिया है। अरब सागर में बार्ज P305 और टगबोट वरप्रदा पर सवार 274 में से 188 को ही रेस्क्यू किया जा सका। कल वरप्रदा के डूबने से कुछ पल पहले का वीडियो सामने आया है। वरप्रदा पर मौजूद 13 में से सिर्फ 2 लोगों को ही बचाया जा सका। उखड़ गए, पटरी पटरा सब उखड़ गए इसके। भाई जिंदगी कुछ नहीं यार, लाइफ में होता रहता है। चिल यार, मस्ती करो और 2 घंटा और 2 घंटे के बाद शांत हो जाएगा। ये तू अंदर आ। जहाज पूरा बैठ गया, टेंशन नहीं, हम लोगों को बाँचा दिया, जहाज ही हम लोगों को बाँचा दिया। ये है 16 मई को ताउते तूफान में फंसी टगबोट की तस्वीर। समुद्र उफान पर था, शोर मच रहा था, लहरें बोट पर काबिज होने की कोशिश कर रही थी। टगबोट वरप्रदा अरब सागर में हिलकोरे खा रही थी। बोट में 13 लोग सवार थे। उन्हें पता नहीं था कि आगे क्या होगा। समुद्र की लहरें नाव पर तैर रही थी। तेज हवा बोट को बुरी तरह हिला रही थी। सेकंड साहब ऊपर आ जाइए, जहाज पूरा बैठ गया, टेंशन नहीं, हम लोगों को बाँचा दिया, जहाज ही हम लोगों को बाँचा दिया। क्रू आपस में एक दूसरे को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग बहुत डर भी रहे थे तो कुछ लोग हौसला बढ़ा रहे थे, पर इन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में मौत उनके सामने होगी। अंदर आ। ये वीडियो क्रू के मेंबर साहेब भुनिया ने बनाया था। वीडियो में साहेब अपने दोस्त सूरज से अंदर आने के लिए कह रहा है और इसके कुछ पलों में लहरों ने बोट को ऐसे हिलाया कि वरप्रदा डूब गई। बोट में सवार 11 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। 2 किस्मत वाले रहे, एक चीफ इंजीनियर फ्रांसिस समोन और दूसरे ये वीडियो बनाने वाले साहेब भुनिया, जिनसे आज तक संवाददाता मुस्तफा शेख ने बात की। ऐसे हुआ कि अबंडन करना है तो कैप्टन साहब सबको ऊपर बुलाया कि जल्दी ऊपर आ जाओ, अबंडन करना है। तो कैप्टन पहले 4 आदमी जाम किया, विकी और भी 3-4 बंदे मतलब ऑयलर करके सब जाम किया। बाद में कैप्टन साहब, चीफ ऑफिसर और हैंडलर सब जम किया। बस मैं, चीफ इंजीनियर साहब, थर्ड इंजीनियर साहब, एक एबी और एक ऑयलर, हम लोग जाम नहीं किया था। बट हम लोग को ये पता था कि जहाज इतना जल्दी नहीं डूबता है, तो हम लोग थोड़ा वेट किया था। बट ऐसे नहीं हुआ, बहुत जल्दी वो डूबने लग गया। तो मेरे सामने मेरा एक राकेश बोल के एक दोस्त था, वो मेरा रूममेट भी था। तो उसने लास्ट टाइम में मेरे को बोला कि भाई मेरे को तैरना नहीं आता है, बट मैं उस टाइम कुछ उसका हेल्प नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा डाउन होके गिर गया था। उसके बाद मैं सामने फिर जाम किया, हम लोगों ने, मैं सभी जाम किया एक साथ। उसके बाद मैं देखा कि 1 सेकंड जाम करने से 1 सेकंड पहले सामने देखा कि एक लाइफ रैफ्ट था।
तो मैं जल्दी गया उधर, तो लाइफ रैफ्ट का जो पेंटर लाइन होता है उसको हम पुल किया तो फूलने लग गया। तो कैसे भी करके उसके ऊपर चढ़ गया था। उसके बाद देखा कि चीफ इंजीनियर साहब साइड में आ रहा था, तो चीफ इंजीनियर साहब का हाथ पकड़ के फिर बहुत टाइम लगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा हैवी है और बहुत तूफान चल रहा था और हवा चल रहा था, इसके चक्कर में थोड़ा लेट हुआ, बट मैं उसको ऊपर कर लिया। भूनिया भले ही बचकर आ गए हों, मगर उस हादसे को वो एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाते। और जब उनके दूसरे 11 साथियों के परिवार वालों के फोन आते हैं तो वो निशब्द हो जाते हैं। बट क्या होता है ना, उधर से आवाज आता है, ऐसे मतलब आवाज आता है जो आंसर देने का लायक नहीं है। कभी किसी के मम्मी कॉल कर रहे और मतलब कुछ आंसर दे ही नहीं पा रहे हम। यास तूफान अब किसी भी वक्त उड़ीसा के बालासोर के पास 150 किलोमीटर की रफ्तार के साथ चोट कर सकता है। उड़ीसा के तटीय इलाकों तक तूफान पहुंच चुका है और पूरे इलाके में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ये अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पानी में पूरा का पूरा वाहन आपको डूबा हुआ दिखाई दे रहा है और ये कई ऐसे इलाकों से तस्वीरें मिल रही हैं जहां बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर आ गिरे हैं, तो उन्हें हटाए जाने का काम भी जारी है ताकि रास्ते पे ट्रैफिक ना रुके। लोगों को शिफ्ट किया गया है तटीय इलाकों से ऊंचाई की तरफ सुरक्षित स्थानों पर कैंप्स लगाकर। और ये जो पानी आप इन तस्वीरों में एकत्रित देख रहे हैं, ये सारा पानी बारिश का नहीं है बल्कि समंदर का पानी है जो रिहायशी इलाकों की तरफ घुस आया है। दुकानों में दूर दूर तक आपकी नजर जहां तक जाएगी आपको दिखाई देगा कि समंदर ने कैसे अपनी परिधि बढ़ा ली है और रिहायशी इलाकों तक को अपनी जद में ले लिया है। वो पानी वहां तक जा पहुंचा है। बालासोर में इस वक्त हमारे संवाददाता कवलजीत हैं और कवलजीत लगातार आपको तूफान के बीच रिपोर्टिंग करके दिखा रही हैं कि वहां पर किस तरह की चुनौतियां इस वक्त हैं और कितने हालात बिगड़ रहे हैं। कवल, वक्त अब धीरे धीरे करीब आ रहा है जब लैंडफॉल होगा, अभी क्या तस्वीर आप वहां देख रही हैं? हो चुका है और इस वक्त बालासोर भी इस चक्रवात में फंसा हुआ है। और आपको बता दें, यास ने दस्तक दे अपने और पीछे जो आप देख सक रहे हैं वो यास का ही दस्तक है। काफी तेज हवाएं चल रही है। काफी जो पेड़ है वो इस वक्त स्वे कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और सामने आपको बता दें जो बारिश है वो बीच बीच में होती जा रही है। तो काफी मुश्किल आ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने घरों में बैठे लोग हैं जो अपनी भीड़ भाड़ जो फोटो लेना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, कई लोग सेल्फी लेना चाहते हैं। बालासोर के लिए ये यादगार रहेगा। अगर इस वक्त जो बढ़ती जा रही है बालासोर में यहाँ पे तेज होती रहेगी, बारिश बीच बीच में होती रहेगी। आगे बढ़ती जा रही है। अगले 4 घंटे काफी जी कवल हमें लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन इस बीच आपको ये हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर जबरदस्त हवाओं का जोर इस वक्त दिखाई देता है। 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इस दौरान चलेंगी। हालांकि ये अधिकतम 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती हैं, लेकिन दीघा में तस्वीरें देखिए जहां समंदर का पानी घरों में दुकानों में जा घुसा है, वहां पर आर्मी और सिविल डिफेंस की टीम जमीन पर इस वक्त मौजूद है जो लोगों को हेल्प कर रही है, मदद कर रही है। और इस वक्त प्राथमिकता यही कि पहले जो लोग निचले इलाकों में हैं वो सुरक्षित जगहों पर रहे, लेकिन उससे बड़ी चुनौती कोविड काल की है। और ऐसे में जमीन पर जो हालात हैं वो भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कहीं पर आपको समंदर के पानी में डूबे हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पानी रिहायशी इलाकों में घुस आया है, तो बिजली के खंभों को जबरदस्त नुकसान इतनी तेज हवाओं की वजह से। और लहरें जिस तरह से उफान मार रही हैं इस वक्त, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी खौफ से भर उठे। हालांकि इससे पहले जब बीते साल अम्फान तूफान आया था तो वो सुपर साइक्लोन था। ये सुपर साइक्लोन को जब कैटेगरी में बांटा गया तो 5th कैटेगरी का उसे माना गया, 5वें नंबर पर उसे रखा गया। अगर उससे तुलना करें तो यास तूफान 7th कैटेगरी का तूफान है, यानी अम्फान से इसकी इंटेंसिटी, इसकी भयावहता कम है। लेकिन उसके बावजूद जमीन पर जो हालात हैं वो इशारा यही कर रहे हैं कि अभी आने वाले 2 दिन, यानी आज का दिन, कल का दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
पश्चिम बंगाल में भी तूफान का असर हो रहा है। दीघा में समंदर का पानी सड़कों तक आ गया। पानी घर दुकानों को चपेट में ले रहा है। आज तक संवाददाता अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट देखिए। दीघा में समुद्र तट से लगभग 1 किलोमीटर दूर क्या हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। चारों ओर किंतु पानी भर गया है। ये नदी नहीं है, ये सड़क है और सड़क में घुटनों तक, कमर तक पानी भर गया है। दुकानों में पानी भर गया है। इंडियन आर्मी की पूरी टुकड़ी यहाँ पर उतार दी गई है। जो दुकानों में पानी भर गया है, जो दुकानदार हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी सभी की मदद कर रही है। यहाँ पर ये देखिए दुकानों में किस कदर पानी भरा है और ये समुद्र का पानी है। बरसात बहुत ज्यादा हुई है ऐसा नहीं है। समुद्र का पानी पूरी तरह से इतना लबालब चारों ओर दीघा में सड़कों पर आ गया है, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इससे पहले। और ये पहली बार हुआ है दीघा के इतिहास में कि इस तरह समुद्र का पानी लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूर सड़कों पर, दुकानों पर, घरों में भर गया है। और इसी वजह से सिविल डिफेंस की टीम, इंडियन आर्मी की टीम जिसको तैनात करके रखा गया था, वो यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो सामान बचा हुआ है, बहुत सा सामान खराब हो गया है, नष्ट हो गया है, और जो सामान बचा हुआ है उनको निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं और दुकानदारों की मदद कर रहे हैं। और ये सिर्फ ये इलाका नहीं है, ऐसे बहुत सारे आसपास में इलाके हैं जहां ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। लोग, दुकानदार खासतौर पर यहाँ पर देखिए आप, चारों ओर भीड़ लगाकर रखे हुए हैं क्योंकि बहुत लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारी दुकानें बंद थी। अब उन दुकानों को खोलकर दुकानों के भीतर जो पानी भरा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब देखने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो माल सामान बचा हुआ है उसको किसी तरह, कितनी भी जल्दी हो सके, निकाल कर बचाया जा सके, तो उसी बचाने की कवायद को हम इंडियन आर्मी की मदद के तौर पर भी यहाँ देख रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है चारों ओर। यहाँ पर घुटनों तक पानी है। तो सामने की अगर मैं दिखाऊं, कैमरामैन तापस बैरी को बोलूंगा कि थोड़ा सामने अगर आपको दिखाए, तो कमर तक पानी भी यहाँ भर गया है। और ये चारों ओर विस्तीर्ण इलाकों में ऐसी स्थिति आई है और ये स्थिति पहली बार दीघा में हुई है। समुद्र का पानी सुबह जिस तरीके से समुद्र से बाहर आ रहा था, जो तटबंध बना हुआ है, जो लहरें उठ रही थी, कम से कम 13, 14, 15 फीट ऊंची लहरें उठ रही थी, उन लहरों ने पूरे इलाके को लेकिन यहाँ पर पानी से भर दिया है। फ्लडिंग की स्थिति हो गई है और ये तो प्रोसेस शुरू हुआ है लैंडफॉल का और ये प्रोसेस कई घंटे तक चलेगा। ऐसे में हवाएं लगातार तेज चल रही हैं और तेज चलेंगी। पानी लगातार बाहर आ रहा है और ये जो पानी है धीरे धीरे और सामने की ओर बढ़ रहा है, जहां घर हैं, होटल हैं, दुकानें हैं। तो ऐसे में नुकसान की गुंजाइश और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ये डिपेंड कर रहा है कि कितने घंटों तक ये प्रोसेस चलेगा। आइए आपको लेकर चलते हैं दीघा, जहां पर इस वक्त हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र मौजूद हैं। अनुपम की ये रिपोर्ट हम इस वक्त देख रहे थे जब समंदर का पानी रिहायशी इलाका, जहां घर हैं, जहां दुकानें हैं, वहां तक घुस आया था। अनुपम, ये तस्वीरें इस वक्त बड़े सवाल पैदा करती है कि अगर तूफान आने से पहले इस तरह के हालात हैं तो तूफान के टकराने के बाद वहां क्या मंजर होगा? बिल्कुल मीनाक्षी, लोग यही आशंका कर रहे हैं कि जिस तरीके से पानी अंदर की ओर रिहायशी इलाकों में आ रहा है, दुकानों में भर रहा है, मकानों में भर रहा है, अगर यही स्थिति कुछ और घंटे चली तो ये स्थिति और बिगड़ सकती है। मैं कैमरामैन तापस बैरी को बोलूंगा पीछे की ओर आपको दिखाए और पीछे की ओर एक नदी सी आपको दिख रही होगी जो सीधे समुद्र में मिल रही है। दरअसल ये नदी नहीं, बहुत चौड़ी सड़क है और इस सड़क में लबालब पानी भरा हुआ है। सड़क के दोनों किनारों पर सैकड़ों दुकानें हैं और दुकानों में भी जो स्थिति है, पूरी तरह से पानी यहाँ पर दुकानों में मौजूद है। अभी हमने देखा इंडियन आर्मी की टीम यहाँ पहुंची थी। जो भी दुकानदार लगभग 1 घंटे पहले से कोशिश कर रहे थे किसी तरह सामान निकाले, उनकी मदद की गई इंडियन आर्मी की ओर से। और जो काम हो सकता है 1.5-2 घंटे में होता, वो 10 मिनट में इंडियन आर्मी की ओर से कर दिया गया। तो यही चीज, यही बात जरूरी थी। इंडियन आर्मी को इसीलिए तैनात भी किया गया था और ये दूरदर्शिता थी कि ऐसी परिस्थितियों में अगर संभव हो सके तो इंडियन आर्मी आए, मदद करे। और वही यहाँ पर देखने को मिला। बारिश फिर धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग यहाँ पर काफी संख्या में बाहर आ गए हैं। और इधर मैं दिखाऊं एक आइसक्रीम की दुकान, जो ये दुकान से बाहर आइसक्रीम का वो निकाला गया क्योंकि दुकान पूरी तरह से डूब चुकी है और इसको किसी तरह बेचने की कोशिश हो रही है। जो लोग हैं उनको बेचकर सामान खत्म करने की, क्योंकि फ्रिज अब काम नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी इस जगह पर काट दी गई है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये सारी परेशानियां यहाँ पर हैं और जैसे जैसे ये तूफान बढ़ रहा है, जैसे जैसे लैंडफॉल चल रहा है और जितनी देर तक चलेगा ये जो पानी है ये और बढ़ेगा। और इसकी एक और वजह भी बता दूं, पूर्णिमा की वजह से इसे एस्ट्रोनॉमिकल टाइड्स कहा जा रहा है। चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, रेड मून, इन सब की वजह से जो
हाई टाइड हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है और इसी वजह से बाहर की ओर आया है पानी। जो तटबंध बनाया गया था उसको भी फांद कर पानी बाहर आ गया और उसी वजह से जो कल्पना पहले लोगों ने नहीं की थी वो इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मीनाक्षी। तो अनुपम लगातार हमें दिखा रहे हैं कि वहां इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन अभी देखना ये होगा कि तूफान टकराने के बाद जो परिस्थितियां बनती हैं उसमें राहत बचाव सबसे तेजी से हो और कम से कम जिंदगी को किसी तरह का नुकसान ना हो। हमारे सहयोगी सूर्याग्नि रॉय की अगली रिपोर्ट आप देखिए, जो वो पश्चिम बंगाल से भेज रहे हैं। आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाते हैं कि किस तरह से तूफान के बाद मौसम डराने के स्तर पर था। बकखाली के समुद्र तट पे जो पश्चिम बंगाल का लास्ट पॉइंट है और जिसके सामने, जिसके आगे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है, समुद्र में साइक्लोनिक तूफान यास जो कल से बंगाल और उड़ीसा की तरफ मूव कर रहा है, वो आज दोपहर के आसपास बालासोर के आसपास लैंडफॉल करेगा। लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पारादीप से लेकर पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप, बकखाली, काकद्वीप इन इलाकों में होगा। ये जगह जो है बकखाली का, यहाँ पे बहुत सारे साइक्लोन्स का इम्पैक्ट हमने पहले देखा है। ये जगह हाई अलर्ट पे है और इस समुद्र तट पर आप देख सकते हैं कैसे इस पूरे जगह पे हवाएं, अगर लहरों की तरफ देखें तो समझ में आएगा हवाएं कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने डिवाइसिव है और ये इसका इम्पैक्ट जब होगा तब समझ में आएगा कि बकखाली और साउथ बंगाल में कितनी तबाही मच रही है। कैमरा पर्सन रक्तम के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, बकखाली, साउथ 24 परगनास। तूफान का असर सीधे पश्चिम बंगाल के तटों पर पड़ रहा है। कई शहरों में इस कदर बारिश हुई कि गाड़ियां बह गई। इस वक्त बंगाल के तटीय इलाकों में गरज के साथ हवाएं डरा रही हैं। दीघा से देखिए अनुपम मिश्र की ये रिपोर्ट। साइक्लोन यास बड़ी तेजी से इस वक्त समुद्र की ओर से धरती की ओर बढ़ रहा है। हम लोग इस वक्त उड़ीसा और बंगाल बॉर्डर पे हैं, दीघा पे, और यहाँ पे हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो चली है। समुद्र भी काफी रफ हो चला है, बिल्कुल अशांत समुद्र, ऊंची ऊंची लहरें और कुछ ही समय की बात है जब लैंडफॉल होने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में लगातार तेज हवाएं बह रही हैं। सुबह से ही जो अनुमान लगाया गया था कि साइक्लोन यास बंगाल और उड़ीसा बॉर्डर से टकराएगा, वैसी ही कुछ संभावनाएं इस वक्त बन चली हैं और जो लैंडफॉल का एग्जैक्ट लोकेशन है वो बताई जा रही है बालासोर और पारादीप के बीच में। एग्जैक्टली बालासोर और धामरा पोर्ट के बीच में ये टकराने वाला है और हम हैं दीघा में। यहाँ से भी ज्यादा दूर ये जगह नहीं है। अगर हम धामरा पोर्ट की बात करें तो वो लगभग 200 किलोमीटर है और बालासोर सिर्फ 100 किलोमीटर यहाँ से है। तो यहाँ पे भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज है। हमें लग रहा है 100 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और जब लैंडफॉल होगा उस समय ये 185 किलोमीटर अधिकतम जो रफ्तार है वो बताई जा रही है। हालांकि अभी तक नुकसान की कोई खबर नहीं आ रही है। थोड़े बहुत पेड़ जरूर गिरे हैं लेकिन इवैक्यूएशन हुआ था, इसलिए ज्यादातर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। तूफान को लेकर मौसम विभाग ने क्या कहा, सुनिए। Odisha. This heavy to extremely heavy rainfall activity will continue over North Odisha districts for today. There will be also heavy to very heavy rainfall activity over Gangetic West Bengal districts and South Jharkhand districts today. And tomorrow there could be heavy to very heavy rainfall activity at isolated places over North Jharkhand and Bihar. Today also we can expect isolated heavy to very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim, and isolated heavy rainfall over West Assam and Meghalaya. The sea condition is phenomenal at present over North Bay of Bengal. This disturbed sea condition will continue till tomorrow morning, and thereafter sea condition will improve for various marine activities. At present, those who are staying in the shelters or the safe places, they should continue to stay there
nobody should come out of the house and the shelters till there is threat due to cyclone. As and when the area will be declared to be relieved from the dangers of the cyclone, people can come out of the shelters and safe places. I request all the people to maintain calm and stay. देश में लगातार आते चक्रवाती तूफान खतरे से सावधान करने का सायरन है। ताउते तूफान ने गुजरात को दहलाया था तो अम्फान ने बंगाल को और यास तूफान ओडिशा में ताकत दिखा रहा है। हफ्ते भर के अंदर दूसरा खतरनाक तूफान और इस बार निशाने पर ओडिशा और बंगाल। तूफान यास की आहट ही डरा रही है। यास की जो आहट है वो सुनाई पड़नी शुरू हो चुकी है। मैं समुद्र की स्थिति आपको दिखाऊंगा का कितना रफ होता जा रहा है धीरे धीरे, और जो बारिश हो रही थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। और आसमान का रुख अगर हम करें तो आसमान में बादल जो छाए हुए थे वो घनीभूत होते दिखाई देने लगे हैं। और ये जो पूरा का पूरा तटीय इलाका है इस वक्त सुनसान सा लगने लगा है, क्योंकि पहले ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो 2-3 दिन पहले से ही शुरू किया गया था उसका फल हम देखने को मिल रहा है। लोग काफ़ी संख्या में लोगों को रेस्क्यू इवैक्यूएट किया गया है, और अभी भी हालांकि कुछ लोग हैं उनको समझा बुझाकर जो साइक्लोन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभी भी हमारे पास काफ़ी वक्त है, एक दिन का वक्त है, आज का दिन है जो भी प्रिपरेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए। ये तूफान अम्फान से भी खतरनाक है, ताउते से भी ताकतवर है। बंगाल में 10 लाख लोग सीधे खतरे में हैं, लेकिन बंगाल से भी बड़ा खतरा ओडिशा में है, जहां तूफान सीधे टकराने वाला है। मृत्युंजय जी, जो जिस तरीके से अभी चक्रवात बनता हुआ दिखाई दे रहा है इनसैट पे, किस तरीके की इसकी रफ्तार है, क्या दिशा है, कब तक ये अलग अलग कोस्टल इलाकों को हिट करेगा? ये जो चक्रवात है अभी पारादीप से लगभग 280 किलोमीटर दूर पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है, और ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। इसका विंड का स्पीड अभी 110-120 किलोमीटर जैसा है, और ये धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह यानी सुबह 5 या 6 बजे ओडिशा तट के धामरा के पास केंद्रीभूत होगा। तब इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गश्तनेस में 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। ओडिशा के भद्रक में धामरा पोर्ट और चांदबाली के बीच बुधवार की सुबह यास तूफान का लैंडफॉल होगा, लेकिन बुधवार दोपहर के बाद तूफान विकराल हो जाएगा। ओडिशा के भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका है, क्योंकि 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलेंगी और इसमें 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक खतरनाक झोंके आ सकते हैं। हम जो प्रेडिक्ट किए थे ऐसे ही ये चल रहा है, और ओडिशा तट पर ये जाने का उम्मीद है। और ये बालेश्वर और धामरा के बीच में इसका जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, माने केंद्र जो पॉइंट है वो जाएगा तट के ऊपर। और ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, कहाँ, क्योंकि वहाँ विंड स्पीड 120 से 165 किलोमीटर तक विंड हो सकता है। वो यही 4 और 5 जिले कवर कर रहे हैं, जैसे केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा। इसके साथ साथ ये जो ग्रीन एरिया है वो अभी कवर कर रहा है यहाँ जो एडजनिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा और वेस्ट बंगाल, और जो वायलेट एरिया है वो झारखंड तक जा रहा है, और ये सभी एरिया में कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसे तूफान में बड़ी तबाही लाने की ताकत है। तूफान के टकराने से पहले के 6 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे बहुत खतरनाक हैं। इसलिए हर तैयारी करना जरूरी है। पिछले 3 दिनों से ओडिशा के समुद्री तट खाली करवाए जा रहे हैं। समुद्री इलाकों से 1.5 लाख लोग हटाए गए। आज तक है ग्राउंड जीरो में, इस वक्त हम बालासोर में हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मछुआरों ने अपने जो किश्ती है वो खड़ी कर दी है, वो रिलीफ सेंटर्स में जा चुके हैं। जी मैडम, चुनौती बहुत बड़ी है। यहाँ लगभग हमें 10,000 लोगों को इवैक्यूएट करना है। हमारी कई टीमें लगी हुई हैं। उसी क्रम में आज हम इस गांव में आए हैं। यहाँ के लोगों को संभावित तूफान के खतरों से हम अवगत करा रहे हैं।